Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 29 for the subject of Introduction to Information Technology. In the previous lecture we discussed the concept of output, different output devices, types of output and different factors to find out or to judge the quality of a display screen. Now here are a few objectives of this lecture. First of all, we will see the difference between the HD, FHD, UHD, 4K and 8K. Then I will discuss different commonly used display devices like monitor. We will see how a CRT monitor works. Then we will see the difference between the LCD and LED monitor. And at the end of this lecture, we will be discussing about printers and things you need to consider before buying a printer. Now here is the first slide. Now you see there are different resolutions written here and there is a short name for each resolution, and here is the display quality of each resolution. For example, we commonly use the term HD. Now HD means high definition. Now a high definition is not a full high definition or ultra high definition, it is a simple high definition. It has a resolution of 1366 multiplied by 768. Then we have the HD plus, high definition plus. So if you come across a display device or a display monitor having 1600 by 900 resolution, you can clearly qualify it as a HD plus display quality. Then we have a commonly used term 720p. Now what is 720p? If you have a resolution of 1280 by 720, this is also known as the high definition और सिंपल HD. अब ये टर्म हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं 1080p. Now what is 1080p? 1080p is FHD. FHD means full high definition. So if you download a movie with 1920 by 1080 pixels, or you have a screen of 1920 by 1080 pixels, you can say that the screen is full HD. Then we have 1440p. This is known as QHD, that is quad high definition. So a quad high definition has this resolution 2560 multiply 1440. Now we have high class video formats that are 4K and 8K. Now what is 4K? 4K is 2160p, and you can say that it is ultra high definition, UHD. So if you have a screen resolution of 3840 multiplied by 2160, you can say that the display device is actually a 4K. Now what is 8K? 8K is also ultra high definition display, and if you have a screen with resolution of 7680 multiply 4320, you can say that it is a 4320p screen or an 8K ultra high definition screen. So ये कुछ डिफरेंस था डिफरेंट रेजोल्यूशंस में, उनकी क्वालिटी में और उनके नेम में, जो आपको ये हेल्प आउट करेगा कि आप डिफरेंट इमेजेस को क्वालिफाई कर सकें, कौन सा इमेज HD है, कौन सा फुल HD है. डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन्स को आप क्वालिफाई कर सकें, कौन सी स्क्रीन HD है, कौन सी FHD है और कौन सी UHD है. सो हेयर आर डिफरेंट कॉमन डिस्प्ले डिवाइसेस. वी हैव monitor. Monitors is the most widely used display device. We have CRT monitor, we have LCD and LED monitors, and then we have plasma monitor as well. So what is a monitor? A computer monitor is an output device that displays information in pictorial form. जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं या स्लाइड्स देख रहे हैं, सो ऑल दिस इज़ इन पिक्टोरियल फॉर्म. सो एक्चुअली जब हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप को यूज़ करते हैं, तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में देख रहे होते हैं. इवन कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वीडियो है, वीडियो इज़ आल्सो ए कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट आर प्लेड एट ए फास्टर रेट, और हमने कहा था जिसे हमने फुल मोशन पिक्चर कहा था.
सो कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो किसी भी फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। जैसे हम स्लाइड्स देख रहे हैं तो ये स्लाइड्स में नो डाउट आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बट द मॉनिटर इज़ डिस्प्लेइंग इट इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। इसी तरह हम कोई पिक्चर देखेंगे या वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में मिलेंगी। नाउ ए मॉनिटर यूजली comprises of 4 things. The first one is the visual display, just like the screen, that is visual display. Then there is electronic circuit. Every computer component is electronic, so there will be an electronic circuit. Then we have a casing. Casing is a box that protects the electronic circuit or internal working mechanism of visual display. And obviously we have a power supply that provides the necessary current or electricity to a display device. Sometimes the monitor packages as a separate peripheral. जैसे अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें या कंप्यूटर लैब्स में पड़े हुए कंप्यूटर्स की बात करें या आप बैंक्स में मौजूद कंप्यूटर्स की बात करें तो उन सब में मॉनिटर जो है वो सेपरेट पेरिफेरल है। यानी आपके पास सिस्टम यूनिट अलग, वो बॉक्स जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, प्रोसेसर है, वो अलग है, और जो आपका मॉनिटर है वो अलग है। अब वो मॉनिटर चाहे CRT है चाहे LCD है। हाउएवर इन सम केसेस द मॉनिटर इज़ इंटीग्रेटेड। फॉर एग्जांपल इन लैपटॉप्स the monitor or LCD is integrated in LED. Similarly we have all-in-one computers. जिस तरह आप Apple iMac सर्च करें तो iMac बेसिकली आपको एक LCD की स्क्रीन की फॉर्मेट में एक कंप्यूटर मिलता है जिसके साथ आपको कोई सेपरेट सिस्टम बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें सारा कुछ बिल्ट इन है। सो दैट इज़ बेसिकली ऑल इन वन कंप्यूटर। सिमिलरली आवर मोबाइल फोन्स आर आल्सो all in one computers because we have the input devices, the output devices, the processing devices and the storage devices in a single tiny package. So a mobile is a good example of all in one computer. Now what are the types of monitor? We have CRT monitor, we have LCD monitor, LED monitor and plasma monitor. Now what is a CRT monitor? A CRT stands for cathode ray tube. A CRT monitor is a desktop monitor that contains a cathode ray tube. और अब हम इन मॉनिटर्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप 12-13 साल 14 साल पहले की बात करें लाइक 2004-5 तो उस टाइम पर CRT मॉनिटर्स यूज़ होते थे. नाउ ए CRT monitor have a much larger footprint. It means that it requires a lot of space और इसका वेट भी ज़्यादा है, सो इसका फुटप्रिंट ज़्यादा है. लेकिन अगर आप इसको LCD से कंपेयर करें तो LCD आपके पास TV भी हो तो उसको इतनी जगह रिक्वायर नहीं है, क्योंकि उसको एक हॉरिजेंटल पोर्शन में जगह रिक्वायर है, जबकि जो CRT मॉनिटर है ये बल्कि होते हैं, इनको विड्थ वाइज और हाइट वाइज और ब्रेड्थ वाइज भी प्लेस चाहिए होती है. So previously CRT monitors were considered as the primary output devices. Now let's look at the construction of CRT monitor. A CRT monitor has different parts. First of all, we have a phosphor screen. The screen that you see in front of a CRT monitor is a phosphor screen. Now phosphor is a material that has a property of illuminating light. So whenever a high energy beam strikes the phosphor glows. So आप कह सकते हैं कि जो CRT मॉनिटर की स्क्रीन है उसमें छोटे छोटे phosphor dots थे. So each dot represented a pixel. Then we have a vacuum tube. Now this is the whole thing is closed in a vacuum tube. Then we have an electron gun. Then we have focusing mechanism and accelerating and deflection system. So let's see how a CRT monitor works. For example, ये हमारे पास CRT मॉनिटर की स्क्रीन है. And here we have the electron gun.
Now an electron gun contains a filament. Now this is the phosphor screen. Here is the electron gun, and here we have anode or accelerating mechanism. Here we have power supply. अब ये पावर सप्लाई क्या करती है? Basically this power supply provides electricity to the electron gun. So whenever electricity is applied on the electron gun or the filament heats up. So this is basically our filament. So the filament heats up. Whenever a filament heats up, it discharges electrons. Electrons are also known as cathode rays. Now the anode has a small hole in it so that the electron beam can move out of this. So the basic idea is that we will produce electron beam by hitting the filament. The electron produced will pass out from the electron gun and strike the phosphor dot. So whenever an electron beam strikes the phosphor dot glows and generates some light. So due to this light we see images on the screen. Now this is the accelerating mechanism. If we want more glow, we accelerate the beam with the help of a पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ पर जब हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे सो बीम एक्सेलरेट होगी, और जब हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे तो बीम जो है वो स्टॉप होगी. देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. So here we have the electric field and here we have the magnetic field. So electric field हम अप्लाई करेंगे एनोड एंड कैथोड की वजह से. सो बेसिक पर्पस क्या होगा इन दोनों का? बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर डिफ्लेक्शन. क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है, हमारे पास फॉस्फोर डॉट्स ज़्यादा हैं, हमने इस एरिया को भी इल्यूमिनेट करना है, हमने इस एरिया को भी इल्यूमिनेट करना है, हमने इस एरिया को भी इल्यूमिनेट करना है. फॉर दिस पर्पज़ वी विल हैव टू डिफ्लेक्ट द बीम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. सो द इलेक्ट्रिक field and magnetic field are used as a deflection mechanism. So this is the working of CRT monitor. Now what are the color CRT monitors? ये जो भी मैंने आपको सिंपल कंस्ट्रक्शन बताई, ये आपके पास एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट मोनीटर की है. Now a color CRT monitor is capable of producing different colors. So it means that the phosphor dots have to emit different colored lights. So इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ऐसे phosphor dots होते हैं जो रेड कलर की लाइट भी एमिट करते हैं, ग्रीन कलर की लाइट भी एमिट करते हैं और ब्लू कलर की लाइट भी एमिट करते हैं. सो व्हेन डिफरेंट कलर्ड लाइट्स आर एमिटेड, उनकी शेड्स जब मिक्स होती हैं तो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो हियर आर डिफरेंट मेथड्स that are used in color CRT monitor. We have electron beam penetration method and we have a shadow mask method. Now what are the pros and cons of using a CRT monitor? The colors of a CRT monitor are accurate and vivid. Vivid means we have a variety of colors. Similarly, resolution is flexible. Maintenance is easy. The service of these monitors is not costly. The cost of these monitors is way less than the LCD monitors. Similarly, these monitors provide a wide angle, यानी आप अगर different side से भी देखें तो आपको पिक्चर क्लियर नज़र आएगी. The prices are cheaper. Now what are the cons of using the CRT monitor?
फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ देयर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इसी तरह क्योंकि इसमें कैथोड रेज हैं तो इससे हार्मफुल रेडिएशंस जनरेट होती हैं, जिससे आपकी आई साइट वीक हो सकती है। सिमिलरली अगर आप CRT मॉनिटर के करीब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यूज़ करें जैसे कोई मोटर, तो इनकी कलर या पिक्चर क्वालिटी पर बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। एंड देन वी हैव के जो आपके CRT मॉनिटर्स हैं वो बल्कि हैं, उनका साइज़ लार्ज है, उनका वेट ज़्यादा है, तो दीज आर नॉट बेसिकली पोर्टेबल, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। देन वी हैव LCD मॉनिटर। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नाउ ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूजेस ए लिक्विड कंपाउंड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। नाउ ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज़ ए थिन फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इट मीन्स दैट इसको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर नहीं है प्लेस करने के लिए। फ्लैट पैनल का मतलब ये है कि ये बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है। अगर आप CRT मॉनिटर को देखें तो उनकी कुछ कर्व्ड स्क्रीन्स हैं, लेकिन अगर आप LCD मॉनिटर को देखें, आप लैपटॉप पे LCD मॉनिटर को देखें या मोबाइल फ़ोन में LCD को देखें, तो ये सारे के सारे फ्लैट हैं, इनकी स्क्रीन जो हैं ये बिल्कुल फ्लैट हैं। नाउ दीज फ्लैट पैनल डिस्प्ले डिवाइसेज used for electronically displaying information such as text, images and videos. LCD are used in computer monitors, in televisions, in different instrument panels, gaming devices and mobile phones as well. Now LCD uses the polarization of light to display different objects. Now what is a liquid crystal? Liquid crystal are liquid chemicals in a state that has properties between those conventional liquids and solid crystals। यानी ऐसे मटेरियल्स हैं जो अंडर सर्टन कंडीशंस लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और अंडर सर्टन कंडीशंस ये क्रिस्टल्स के वे में भी बिहेव कर सकते हैं। सो व्हेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अप्लाइड टू ए लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स, they can align or they can change their shape, and whenever these molecules are properly aligned, they can allow the light to pass through it and fall on the screen. So here is the basic structure of the LCD screen. We have a backlight system, we have a diffuser, then we have a in polarizer, then we have LCD color filter array, then we have out polarizer and then we have glass और protective film। तो जो हमें पिक्चर्स नज़र आती हैं वो प्रोटेक्टिव फिल्म पे नज़र आती हैं। बैकलाइट जो है वो लाइट सोर्स के तौर पे काम करती है, और डिफ्यूज़र और पोलराइजर्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल को ऑर्गेनाइज और डीफॉर्म करने के लिए, ताकि लाइट को अलाउ करें और लाइट को डिसअलाउ करें। Now what are the types of LCD? We have two types, the passive matrix and the active matrix. Now what is passive matrix? A single transistor controls a complete row or column, so we have less quality। यानी इसमें एक ट्रांजिस्टर या तो एक पिक्सल की रोज को कंट्रोल करेगा या कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। Now we have active matrix. Each pixel is controlled by a separate transistor, so we have high quality image. This is also known as the thin film transistor or a TFT. Now what are the advantages of LCD? LCDs are smaller in size, the power consumption is low, these are lightweight, so you can take these from one place to another easily. इसी तरह इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं है जिसकी वजह से कोई रेज प्रोड्यूस नहीं होती, आपकी आइज़ पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, एंड दीज हैव लॉन्गर लाइफ। नाउ व्हाट इज़ LED? LED stands for light emitting diode monitor. Now an LED monitor uses an array of light emitting diodes as a pixels for video display। यानी LED मॉनिटर्स में आप पिक्सल्स को कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल LEDs यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम LCD की बात करें तो वहाँ पर तो आपको रो वाइज बैकलिट्स नज़र आ रही है, जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये बैकलिट्स हैं।
But if you talk about the LED monitor, you have different LEDs that provide light for creating display. So an LED monitor is also a flat screen or flat panel display that is used in laptops, computer screens, televisions and mobiles as well. Now the major advantage of the LED monitor or LED screen is that these are totally visible in the sun. Similarly, LEDs have smart dimensions like LCD monitors. You can take the LED monitors from one place to another easily, और इसी तरह ये ज़्यादा जगह भी कंज्यूम नहीं करते. Now what is the difference between LCD and LED? There is a classically one difference between LCD and LED, and that is backlighting mechanism. LCD uses CCFL mechanism, and CCFL stands for cold cathode fluorescent lamps, while LED uses light emitting diodes to illuminate the screen. Here we have different types of LEDs. We have OLED, AMOLED, micro LED and QLED. Then we have a plasma display. A plasma monitor or a display device uses gas plasma technology and offer large screen sizes. So how a plasma screen works? A plasma TV or a plasma screen is a television display technology in which each pixel on the screen is illuminated by a tiny bit of plasma, and that is charged gas. The plasma is enclosed or encased between two thin sheets of glass. तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्लाज्मा टीवी है, इसमें हर पिक्सल को इल्यूमिनेट करने के लिए या कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए हम गैस प्लाज्मा मटेरियल को यूज़ करते हैं. So whenever electricity is applied on these gases, these gases generate light. So whenever different colored lights are produced, उनके combination से हम different colors produce कर सकते हैं. So plasma display screens are made of glass which reflects more light than material used to make an LCD screen. Now what are the advantages of plasma TV? You have higher resolution. These are wide screen. जैसे मैंने आपको डिस्प्ले क्वालिटी में डिस्कस किया था कि ये ज़्यादातर हमारे पास 16:9 और 16:10 एस्पेक्ट रेशो में एग्जिस्ट करती हैं. सिमिलरली दीज आर सेफ फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड्स एंड वी हैव ए वाइड व्यूइंग एंगल. यानी अगर आप डिफरेंट साइड से किसी प्लाज्मा टीवी को देखें तो आपको डिस्टॉर्ट पिक्चर नज़र नहीं आएगी, बल्कि आप क्लियर पिक्चर देख सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? First one is the short life. Then these are fragile because of use of glass. Then these are pressure sensitive. अगर आप इनकी स्क्रीन्स पर प्रेशर अप्लाई करें तो उससे जो है वो पिक्सल डेड हो सकते हैं. Similarly, these screens are affected by the altitude because altitude can create a pressure difference, and due to the pressure difference आपके जो कलर्स प्रोड्यूस होंगे उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी. Now next we have printer as an output device. A printer produces the hard copy output. यानी आप बुक्स प्रिंट कर सकते हैं, आप ब्रोशर्स प्रिंट कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर प्रिंट कर सकते हैं. सो प्रिंटर बेसिकली प्रोड्यूसेस द हार्ड कॉपी. So here are different factors that you need to consider before purchasing a printer. The first thing is your budget. प्रिंटर को परचेज़ करने से पहले आपका बजट मैटर करेगा. अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर परचेज़ करेंगे तो वो चीप कॉस्ट में मिल जाएंगे. अगर आप कलर्ड प्रिंटर्स परचेज़ करने जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट में मिलेंगे. सेकेंडली, हाउ फास्ट मस्ट माई प्रिंटर प्रिंट. अगर आप ओकेजनल यूज़र्स हैं तो आपको स्पीड से इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल यूज़र्स हैं जिन्होंने पर डे में हंड्रेड्स ऑफ पेजेस प्रिंट करने हैं, सो द प्रिंट स्पीड विल मैटर अ लॉट. थर्ड, डू यू नीड ए कलर प्रिंटर? इफ़ योर एंटायर वर्किंग इज़ विद black and white documents, then you don't need to purchase a color printer because it will cost more. Now what is the cost per page for printing?
फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर जो है उसमें एक टर्म यूज़ होती है कार्ट्रिज। प्रिंटर की जो इंक होती है वो कार्ट्रिज में स्टोर होती है। अब उस कार्ट्रिज को आपको फिल करवाने के लिए सर्टन कॉस्ट लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ लगते हैं उस कार्ट्रिज को फिल करने के लिए। एक कम्प्लीटली फिल कार्ट्रिज के साथ एक प्रिंटर जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंटर जो है वो फिल्ड कार्ट्रिज के साथ 1000 पेजेस प्रिंट करता है और आपको इसको रीफ़िल करवाने के लिए भी 1000 रुपीज़ चाहिए। सो इट मीन्स दैट योर प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ 1 रुपी पर पेज। सो ऐसे प्रिंटर जिसमें आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी उसकी वो आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होगी। देन डू आई नीड मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट। बाज़ औक़ात हमने बुक्स प्रिंट करनी है या नोट्स प्रिंट करने हैं तो हम मल्टीपल कॉपीज़ निकालते हैं। सो सम प्रिंटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मल्टीपल कॉपीज़ वाइल अदर्स आर नॉट। सिमिलरली विल आई प्रिंट ग्राफिक्स, यानी आप इमेजेस और पिक्चर्स प्रिंट करेंगे या नहीं। अगर तो आप प्रिंट करेंगे तो आपको कलर्ड प्रिंटर चाहिए, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट विल डू द वर्क। डू आई वांट टू प्रिंट द फोटोज़। इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर देन यू विल need to buy a photo printer that provides far better quality than a graphical printer. Similarly, do I want to print directly from a memory card? एक मैकेनिज़्म तो ये है कि आप प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें और फिर कंप्यूटर से प्रिंट आउट करें, लेकिन बाज़ प्रिंटर्स में ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप उनमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर दें तो आपको फाइल्स डिस्प्ले कर देते हैं कि टाइनी LCD स्क्रीन पे आप उधर से सिलेक्ट कर सकते हैं आपने किस फाइल को प्रिंट आउट करना है। Then what type of paper does the printer use? जैसे हमने डिफरेंट पेज टाइप्स पढ़ी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया था A4 पेज, लीगल पेज, लेटर पेज। सो जो आप आजकल लेज़र प्रिंटर्स हैं वो इन टाइप्स के पेजेस को इजीली प्रिंट कर देते हैं, उसमें आपके पास एडजस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लेबल एंड पोस्टेज प्रिंटर की बात करें तो वो लिमिटेड साइज़ में प्रिंट करते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपने किस टाइप की प्रिंटिंग ज़्यादा करनी ताकि आप सूटेबल प्रिंटर परचेज़ करें। सो व्हाट साइज़ ऑफ पेपर डज द प्रिंटर एक्सेप्ट। हर प्रिंटर जो है वो डिफरेंट साइज़ एक्सेप्ट कर सकता है। नाउ डू आई वांट टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। एक मेथड तो ये है, अगर आपने किसी पेज की दोनों साइड्स पर प्रिंट करना है कि आप पहले ऑड पेजेस प्रिंट कर लें और फिर उन पेजेस को रखते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन में और उसके पीछे फिर आप इवन पेजेस को प्रिंट आउट ले लें। लेकिन बाज़ प्रिंटर्स आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि वो डुअल साइड प्रिंट आउट करें, यानी आप जस्ट उनको कमांड प्रोवाइड कर दें और वो डुअल साइड पर ऑटोमेटिकली प्रिंट करेंगे। सो इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल प्रिंटिंग, इफ़ यू हैव ए प्रोफेशनल प्रिंटिंग शॉप और आप बुक्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा प्रिंटर परचेज़ करेंगे जो बोथ साइड्स पर प्रिंट करे। सिमिलरली हाउ मच पेपर कैन ए प्रिंटर होल्ड। प्रिंटर के ट्रेज होते हैं, ट्रे में स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस आप पुट कर सकते हैं। सो ये भी एक फैक्टर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा प्रिंटिंग करने के आदी हैं या आपकी वर्किंग में आपने ज़्यादा प्रिंटिंग करनी है सो आप चाहेंगे कि जो ट्रे है उसमें ज़्यादा पेजेस आ सकें ताकि आपको बार बार पेजेस लगाने ना पड़े। देन विल द प्रिंटर वर्क विद माई कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। यानी आपने ये देखना कि जो प्रिंटर है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ वर्क करेगा या नहीं, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करेगा या नहीं, ये आपने देखना। उसके बाद आपने ये देखना कि इंक की कॉस्ट कितनी है, टोनर की कॉस्ट कितनी है, पेपर कॉस्ट कितनी है। फिर आपने ये देखना कि प्रिंटर जो है वो इनवेलप्स भी प्रिंट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप पेज की ऑप्शंस देखें वर्ड में तो आपको इनवेलप्स भी नज़र आएंगे। उसके बाद हाउ मैनी इनवेलप्स कैन बी प्रिंटेड एट ए टाइम। उसके बाद आपने ये जज करना कि आपकी करंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं प्रिंटिंग की और इन फ्यूचर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इंक्रीज़ करेंगी या डिक्रीज़ करेंगी। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि एक प्रिंटर जो है उसको हम नेटवर्क पे भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, यानी उसको हम शेयर भी कर सकते हैं कि नहीं। सो ए प्रिंटर दैट इज़ ए शेयर्ड वन इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन यूज़ द प्रिंटर एट द सेम टाइम। सिमिलरली अगर आपको कोई प्रिंटर ब्लूटूथ की फैसिलिटी प्रोवाइड करे या वाईफाई या वायरलेस की प्रिंटिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे तो आपको
की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आप उसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेसली प्रिंट की कमांड भेज सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर परचेजिंग a printer. Now here are different types of printers, like we have inkjet printer, we have a photo printer, we have a printing cable. इस तरह ये आपको दिखाया कि मेमोरी कार्ड पे भी प्रिंटर वर्क कर सकते हैं। These printers are connected with a digital camera with the help of cable. This printer is connected to this mobile phone wirelessly. Similarly, this printer is communicating with this digital camera wirelessly. So ये बहुत सारी टाइप्स हैं जो प्रिंटर की आप देख सकते हैं परचेज़ करने के लिए। In the next lecture we will discuss different types of printers and their working mechanism.